morning, Your Holiness. It is very nice to meet you virtually today. On behalf of the तो आज organizers, इंटरनेट के माध्यम thank से you very much आपसे for मिलकर के accepting our खुशी हो रही है invite for this online और हम seminar. लोगों की This dialogue is जो initiated रिक्वेस्ट है by उसको आपने Ladina स्वीकार Gyatso, किया उसके लिए coordinator of बहुत the बहुत Southeast धन्यवाद। Asia Conference. तो जिम्बा And this गैस्ट्रो की journey is तरफ से organized by 13 जिन्होंने के organizations साथ around 40 कार्यक्रम different को countries. ऑर्गेनाइज किया। Today, we are Today, we are also very honored to have three distinguished academic guests joining the dialogue today. Our first तो इसमें guest अलग अलग is Mr. Kishore Mahbubani गेस्ट from हैं। तो Singapore. He is a जो distinguished किशोर fellow in Asia मागोबानी Research Institute, जो कि formerly एशिया the Dean रिसर्च of National सेंटर University से of हैं। Singapore, Lee Kuan Yew School of Public तो Policy सिंगापुर for के 5 years, पूर्व के डीन रहे and हैं over 3 जो decades पब्लिक पॉल as a Singapore पर काम Permanent किया। Representative to the United Nations during his time as Ministry of Foreign Affairs. Thank you, Mr. Kishore. Our second guest is और Professor दूसरे हमारे Imtiaz जो इस Ahmad गेस्ट हैं Saukat Yusof तो from प्रोफेसर Malaysia. इम्तियाज़ He is the Deputy Dean और of वो Student Development मलेशिया and से Community और Engagement at स्कूल जो International स्टूडेंट Islamic डेवलपमेंट University कम्युनिटी of के Malaysia. He is also the सदस्य हैं। coordinator of Islam and Buddhist program at International तो Institute for बुद्धिस्ट और Islamic इस्लाम Thought and प्रोग्राम के Civilization. कोऑर्डिनेटर Thank हैं, you, Mr. Yusof. संयोजक हैं। तो यूसुफ आपको भी And our धन्यवाद। third guest is Associate Professor Kama Onyak Kamaruzaman from तो ये Malaysia. कामा He is the रोजामान author जो and कि lecturer मलेशिया at से, International Islamic University of Malaysia तो वो and के the Institute for इस्लामिक यूनिवर्सिटी से Islamic हैं। Thought and Civilization. She specialized in comparative religion and actively involved in तो इनका Muslim and जो Islamic प्रमुख जो research. क्षेत्र है Thank you, वो जो Professor कि Kama. कंपैरेटिव धर्म है या तुलनात्मक धर्म का अध्ययन, ये इनका विशेष क्षेत्र है। Your Holiness, since the outbreak of coronavirus this January this year, many lives have undergone tremendous changes at work, तो परम life पावन जी home, जनवरी in the से last लेकर के 6 months. अब तक कोरोना Their की families वजह से scattered बहुत in सारे लोगों different की cities मृत्यु हुई है and remote village of the Amazon have created a lot of anxiety and fear. With the global lockdown, strained healthcare system, और इसके साथ many साथ fragile health ग्लोबल systems लॉकडाउन and की वजह से economies constraints. बहुत Many सारे families लोगों को become मुश्किलें हुई हैं panicked on how the और future lies ahead. जो बहुत सारे बेरोजगार भी The हुए world has हैं, become more युवा लोग हैं, complex, उनको भी मुश्किल हुई more है। interconnected, and seemingly harder to deal with more than before. And today, in और our पहले hall, से ज़्यादा we have over लोगों 700 को समस्याएं हुई हैं। delegates, mainly from Southeast Asian countries. 13 of them today, 13 of the youth today, a mixture of youth, students, and adults will be asking their question to you directly. However, तो इसमें before से that, बहुत सारे लोग Your हैं Holiness, जो को what would आपसे you advise प्रत्यक्ष रूप to से the young प्रश्न leaders of पूछेंगे। the future in this तो current situation? उसके साथ साथ Thank you, Your Holiness. तो इस सामान्य जो स्थिति आज की स्थिति उसमें आपका क्या एडवाइस रहेगा? Thank you. Firstly, I appreciate the organizer who तो आपको created this धन्यवाद। और opportunity. सबसे पहले मैं जो ऑर्गेनाइजर है उनको So धन्यवाद thank you देना very चाहता much. हूँ कि जिन्होंने इस अवसर को उत्पन्न किया है, Then ये अवसर प्रदान किया है। I always, you see, share with other people, and one of my fundamental belief that is entire 7 और billion मैं human हमेशा लोगों being से we कहता are हूँ same. कि विश्व के 7 अरब से ज़्यादा जो लोग हैं वो सभी के सभी समान हैं, From the Buddhist हम सभी viewpoint, भाई बहन हैं। entire sentient being is same. और जहाँ तक बौद्ध धर्म के अनुसार भी अगर देखें तो बौद्ध धर्म में भी कहा जाता है कि जितने भी जीवधारी हैं हम सभी समान हैं, having happy life, happy family. सभी सुख चाहते हैं, खुशहाल जीवन चाहते हैं, खुशहाल परिवार चाहते हैं। Birds, they also have that same desire. तो चाहे छोटी से छोटी कीड़े मकोड़ा क्यों ना हो, चिड़िया क्यों ना हो, वो भी चाहते हैं कि उनको भी सुख मिले। तो उनकी भी इच्छाएं समान ही होती है, एक जैसी ही होती हैं। And unfortunately, our intelligence sometimes is combined with our destructive emotion. तो हमारी जो भावनाएं हैं
या हमारे कहा जाए कि बौद्धिक क्षमता की वजह से, इंटेलेक्चुअल की वजह से कभी कभी थोड़ी सी मुश्किलें पैदा करते हैं, कुछ नकारात्मक भावनाएं भी पैदा करते हैं। हालांकि जानवरों में भी उनके बुद्धि होती है, लेकिन मनुष्यों के समान देखा जाए तो उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। क्योंकि जो परेशानियां हैं और मुश्किलें हैं वो मनुष्यों के द्वारा ज़्यादा पैदा किए जाए और जानवरों के द्वारा तो इतना संभव नहीं है, क्योंकि हम मनुष्यों ने एक अपने इस अच्छे दिमाग की वजह से तकनीक को पैदा किया है, विज्ञान को बढ़ाया है। लेकिन फिर एक दुर्भाग्य की बात है कि इस तकनीक को हिंसा के रूप में, युद्ध के रूप में या हत्या करने के रूप में बहुत सारा उपयोग किया है। जैसे कि आप यहाँ तक हाइड्रोजन बम को भी देखें तो इस तरह की खतरनाक चीज़ें हमने बनाई हैं, तो वो अन्य मनुष्यों के अलावा दूसरे नहीं बना सकते। ये केवल हम मनुष्यों के द्वारा ही संभव हो सका है। तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने अपने जिस प्रकार से हमें कुशल कर्म करने चाहिए, जिस रास्ते पर हमें चलना चाहिए, उससे भटक कर दूसरे मार्ग पर चले गए। तो आज के समय में देखें कि इस विश्व की जो मानवता है वो अपने ही परिणामों को भुगत रही है। हमारे द्वारा बनाए हुए जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उन्हीं को भोग रही है। तो हम लोगों ने ही इन समस्याओं को बनाया है, तो इसका मतलब हम लोगों की ही जिम्मेदारी बनता है कि इस समस्याओं से खुद निजात पाएं, खुद इससे तो ये एक तथ्य है कि ये समस्याएं जो है मनुष्यों के द्वारा बनाई गई हैं, तो मनुष्य इस समस्याओं को निदान भी कर सकते हैं, हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। और वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि मानव का जो स्वाभाविक जो प्रकृति है, आदत है, वो एक ज़्यादातर करुणामयी होता है, और हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं। और जो भी सामाजिक प्राणी है वो अपने समुदाय के रख रखाव करता है, उसके प्रति ज़्यादा वफादार होता है। तो हम लोग को बचपन से ही अपनी कम्युनिटी, अपने समुदाय के प्रति जिम्मेदारी का भाव हमारे अंदर पैदा होता है। तो जहाँ तक हमारी शक्ति की बात करें, बल की बात करें, तो वो हमारी करुणा, मैत्री, दूसरे की भावना, तो ये सारी हमारे अंदर होती हैं। और जब हमारे अंदर इस प्रकार के विचार होंगे तो हमारे अंदर उसी प्रकार से एक आत्मबल पैदा हो जाता है। तो उनमें से जो हमारा एक प्रमुख जो दृढ़ निश्चय है या कमिटमेंट है, तो मैं सारे के सारे 7 अरब लोगों के लिए है, चाहे उसमें से धर्म को मानने वाले हों या न हों। तो लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सबके अंदर एक प्रेम और करुणा, मैत्री का संदेश होना चाहिए, भावना होनी चाहिए। तो आज के समय में जो वास्तविकता को देखा जाए या वास्तविक रूप से देखा जाए कि बहुत सारे एक दूसरे में भेदभाव का अंतर भेदभाव की बातें आज पैदा होती हैं। फिर उसके बाद युद्ध होते हैं, हथियारों का उपयोग होता है। तो इसलिए जो 7 अरब के आसपास लोग हैं, उनकी एक रूपता के लिए हमें सोचना चाहिए। और एक दूसरे की हत्या करने का कोई मतलब नहीं है, कोई आधार नहीं है, हमें हत्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरा उद्देश्य है कि किस प्रकार से जो 7 अरब के आसपास लोग हैं वो एक साथ आ सकें। तो किसी भी उनके अलग अलग जाति हो सकती है, अलग अलग देश हो सकते हैं, अलग हो सकती है। एक सबसे प्रमुख बात है कि हम सब मानव हैं, हम सब मानव जाति के हैं।
say, in remote area, when you see, some way we just oneself lonely remain there. जब कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी ग्रामीण क्षेत्र में है और अकेला रह जाए, Then और first the reaction is, oh, one human being there. You see, तो फिर क्या होगा no कि sort जब of idea एकांत में what आदमी is किसी को देखते हैं, nationality, अचानक हम देखते हैं what is तो कहते हैं अरे religion, ये आदमी what कहाँ is से आ गया, races. ये क्यों No. है यहाँ पर। So long, तो उस समय हमारा you see, मन two विचार legs, ये नहीं होता है two कि ये arms, किस जाति का or है, कहाँ से human है, face, राष्ट्र we क्या है, simply, you see, feel, इत्यादि विचार नहीं oh, आते। there's सबसे पहले one हमारे अंदर human being there. एकदम से I विचार can आता, अरे seek ये तो some help एक from व्यक्ति him. है, उस आदमी That को is nature. देख सकता हूँ, उसको हमको So मदद therefore, करना चाहिए। तो एक प्रकार से हमारे अंदर today, एक सकारात्मक भावना पैदा really होती we है, उसकी मदद meet करने की too many इच्छा होती problems है। तो उसी प्रकार से because आज we के too समय much में भी also बहुत the सारी जो emphasis समस्याएं हैं मनुष्य के द्वारा differences. निर्मित हैं, That's the और ये second thing. समस्याएं जो बनी हैं वो The भेदभाव only करने की वजह से remedy उत्पन्न हुई हैं। to reduce that, we must go deeper way where all तो 7 इसलिए इन billion, समस्याओं को 7 अगर billion human नष्ट being करना are चाहते हो same human being. तो Same हम way लोगों को ये भावना born, रखनी चाहिए same कि way सारे के सारे taking जो mother's लोग हैं, milk, 7 अरब के आसपास लोग समान हैं। same way हम सभी die. एक तरह से पैदा होते हैं, सभी माँ बाप से, So अपने माँ से जो है उनके while स्तनपान we करते alive, हैं, और सभी लोगों की एक समान ही, एक much तरीके better से ही मृत्यु होती है। live together तो इसलिए अच्छा होगा कि जब तक हम with sense जीवित हैं of तब तक हम लोग साथ oneness साथ of रहें, 7 billion human being, and और then ये भावना try रहे to कि 7 अरब promote के आसपास जितने भी लोग हैं वो सभी human के सभी compassion, हमारे मित्र हैं और नज़दीकी हैं। human loving तो 7 अरब kindness. के आसपास सभी लोगों का एक So समान that's my विचार होना number one चाहिए। commitment. तो So ये I मेरा want to share नंबर with 1 you. पहला कमिटमेंट है। तो Then ये मैं number आपसे 2 कहना चाहता commitment, था। religious फिर harmony दूसरी मेरी जो on this planet. दृढ़ प्रतिज्ञा है कि Over धार्मिक 1,000 सद्भाव years, होना चाहिए। और इस I think almost इस 3,000 प्लानेट years, पर देखें different religious तो आप tradition देखोगे कि पिछले developed. 3000 वर्षों में कि अलग अलग All धर्मों का यहाँ विकास हुआ, carry उत्पन्न a हुए, message of love. और सारे धर्म जो है Inspired in different प्रेम philosophy, का different संदेश concept. देते हैं। हालांकि All, उनके अलग अलग you see, सिद्धांत हैं, अलग अलग carry दर्शन हैं, the practice of love and लेकिन सभी forgiveness. का जो संदेश है वो tolerance. प्रेम, करुणा, क्षमा, So all major religious सहिष्णुता, tradition, ये सभी different धर्मों की philosophy, there are. Some say there is एक creator. प्रकार से संदेश हैं। तो लेकिन Most दार्शनिक theistic तरीके से religion, देखें तो अलग अलग they हो सकते believe हैं। तो कुछ लोग Then those non-theistic religion, ईश्वर को मानते हैं, और say, जो कि no ईश्वर को no idea जो of कुछ लोग ईश्वर को creator नहीं मानते हैं, तो वो कहते हैं कोई कर्ता नहीं is होता, created. और And then, स्वयं ही as is the सारी scientists चीज़ें say, स्वयं निर्मित है। evolution. और Gradually, वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि वो we human इवोल्यूशन की being, वजह से है, from monkey, from और further, कहते हैं कि हमारे जो मानव furthermost, जाति there's है some, उनके पूर्वज you see, I देखे think जाएं तो कोई बंदर originally जाति some या jelly, फिर जो भी रहे हों उनसे हम पैदा हुए हैं। jellyfish or something. और उससे अगर जाते Then हैं gradually, तो फिर और you see, जो छोटे छोटे come जीवों to से जेलीफिश earth या as a अमीबा ऐसे जो car. कहते हैं, तो ऐसे अलग अलग or, परम पावन जी कह or रहे हैं। land. Then gradually, you see, we develop like that. So our brain तो also, इस प्रकार से you जो see, मानव का विकास हुआ है 1,000 years, छोटे एक several thousand years, कोष के जीव से gradually लेकर के develop आज हम यहाँ पर इस with our स्थिति में physical. हैं। So therefore, the different philosophical view, but all carry same message of love. और अलग अलग सिद्धांत हैं, On अलग that अलग basis, दर्शन हैं, उन सभी religious का harmony एक ही संदेश है, certainly वो can करुणा और develop. मैत्री का संदेश लेकर के जाते हैं। India is सभी करुणा और one मैत्री का example. संदेश देते हैं, और भारत एक All उदाहरण है। world major religious tradition live जितने together भी विश्व के in India. जो समुदाय हैं, जो भी परंपराएं हैं, वो सभी के Like सभी भारत में एक Judaism, साथ रहते हैं। Christian, चाहे Christianity, यहूदी and धर्म then हो Zoroastrianism, या फिर ईसाई हो, all पारसी these हो, कोई भी हो, different वो सारे के सारे यहाँ पर what रहते is it, हैं। religious tradition live together here. We never heard सभी के लोग यहाँ this पर is साथ problem. साथ रहते हैं, कभी एक For दूसरे का example, नुकसान problem नहीं between पहुँचाते हैं। Shia and Sunni. I never heard.
See, this country, मैंने कभी in भी the भारत past में history, शिया और sometimes some सुन्नी के बीच problems, इतने but बड़े झगड़े basically, या India समस्याएं नहीं is देखी an हैं। example religious थोड़े मोड़े freedom. झगड़े या सोच समस्याएं So, हो सकती हैं, लेकिन मूल रूप से अगर देखा India, जाए तो यहाँ भारत में भी number धार्मिक two, सद्भाव रहा है और अभी भी है। number two most populated nation. और भारत की बात करें तो ये और दुनिया religious का harmony दूसरा राष्ट्र there. है जहाँ पर कि So therefore, सबसे ज़्यादा आबादी है। my इतनी number two आबादी होने के commitment बाद is भी धार्मिक सद्भाव है। try to promote तो मेरा religious दूसरा harmony जो एक कमिटमेंट है, प्रतिज्ञा and है mutual learning कि मैं and work सद्भाव, together. धार्मिक सद्भाव को बना सकूं Then और third, मैं इसके लिए कार्य भी third कर my रहा हूं commitment, और आगे भी I am कार्य Tibetan. करते रहें। Tibetan people, और तीसरा जहाँ तक trust मेरा me, एक प्रतिज्ञा है तो they मैं put तिब्बती lot हूँ। of hope तो तिब्बती on लोग me. मेरे ऊपर So I उम्मीद have करते moral हैं, उन responsibility. लोग को बहुत सारी मेरी So प्रति एक श्रद्धा है, regarding तो Tibet, मेरी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है my main concern is कि मैं उनके लिए preservation सोचूं। of Tibetan और तिब्बत के बारे में जहाँ तक basically बात है language, because तो ये मैं Tibetan चाहता language हूँ is the कि तिब्बती जो closest भाषा है language with उसका Sanskrit. रखरखाव कर सकें, क्योंकि तिब्बती भाषा संस्कृत भाषा के बहुत ही नज़दीक है। Ancient Buddhist और tradition, इससे जो जिससे Pali कि जो tradition, प्राचीन धार्मिक Sanskrit जो ग्रंथ tradition, हुआ करते थे, is तो we पाली Tibetans और संस्कृत over 1000 परंपरा, years, इन the दोनों Sanskrit परंपराओं को हम tradition तिब्बती लोगों ने पिछले is we 1500 वर्षों से उसको translated संरक्षित करके रखा है। हम तिब्बती लोगों ने Sanskrit उन text ग्रंथों का अनुवाद and किया Pali है। text. बहुत सारे So संस्कृत और together, तिब्बती ग्रंथों को तिब्बती भाषाओं में अनुवाद altogether किया 300 volumes. और So we उनकी study संख्या these 300 से ज़्यादा text and meditate. है। और हम Very सभी लोग useful. So जो that अध्ययन करते हैं इसके ऊपर ध्यान भी करते हैं, जो कि knowledge, लाभदायक है। I feel not only Tibetan, तो ये जो दर्शन या Tibetan ज्ञान knowledge, है, Tibetan thing, but if ये we केवल can, I तिब्बती can जो say ज्ञान और ऐसा हो ऐसा Tibetan नहीं है। knowledge, which तो मैं come कह from सकता हूँ Nalanda कि जो tradition, तिब्बती जो is really ज्ञान है precious जो कि of नालंदा world. परंपरा से आया हुआ है, तो ये विश्व Whether की एक believer or विरासत है, non-believer, विश्व के लिए एक in धन है। Sanskrit tradition, चाहे आप धर्म को lot of मानते हो या explanations ना about मानते हो, logic, लेकिन फिर भी about philosophy. जो बौद्ध धर्म के जो These संस्कृत जो नालंदा we can परंपरा की consider जो academic व्यवस्था रही subject, है, not a religious उसमें subject. बहुत सारे So therefore, I really feel worthwhile to preserve Tibetan knowledge since 8th बहुत सारे century. जो लॉजिकल चीज़ें, बहुत ही जो तार्किक चीज़ें दी गई हैं। Nalanda तो 8वीं शताब्दी में देखें कि by आचार्य Tibetan king, शांति रक्षित जी को तिब्बत के राजा ने उनको वहाँ पर बुलाया। वो बहुत ही बड़े दार्शनिक थे, बहुत ही बड़े आचार्य थे। उनको तिब्बत राजा ने तिब्बत में बुलाया और हम तिब्बती लोग पिछले इतने वर्षों 8वीं शताब्दी से लेकर अब तक उनकी सलाह को मानते आ रहे हैं। इसलिए अगर कई दृष्टिकोणों से देखें कि जो तिब्बती भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो तिब्बती भाषा और उसका रखरखाव हो सके, तो तीसरी बात कि जो वहाँ की जो पर्यावरण है, तो तिब्बत का पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण है। तिब्बत जो विश्व की छत कही जाती है और ज़्यादातर नदियाँ जो कि पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में और जो अन्य देशों में, जैसे फिर उसके बाद वियतनाम, चाइना, जो चाइना में येलो या पीली नदी कही जाती है, तो वो विश्व की ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो एशिया के सभी राष्ट्रों को सम्मिलित कर लेती हैं, सभी राष्ट्रों को उससे पानी मिलता है। तो ये नदियां तिब्बत से आए हुए हैं, तो इसलिए तिब्बत का जो पर्यावरण है, इकोलॉजी है, उसको संरक्षित करना चाहिए। और खासकर आज के समय में देखें कि हर वर्ष जो ग्लोबल वार्मिंग विश्वता है, हर 10 वर्ष में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मैं अपना खुद उदाहरण देना चाहता हूँ। मैंने खुद उदाहरण दिया कि जब 1966 में जब भारत आया था, माफ़ करना 60 के आसपास जब भारत में आया, तो उस समय जो बर्फीली पहाड़ियाँ थीं वो भरी रहती थीं, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो धीरे धीरे वो बर्फ़ जो जमती थी वो नष्ट हो गई है।
तो Tibet आज के समय में ecology जो वैश्विक ताप है preserve these और जो गर्मी बढ़ रही है वो sources of बहुत ही these river खतरनाक स्थिति very में है, important. पर्यावरण बहुत ही मुश्किल में है। तो इसलिए Then my मेरा fourth यही commitment, एक प्रयास that है कि is, तिब्बत के पर्यावरण को बचाया जाए, जिससे कि since नदियाँ these में knowledge पानी आता रहे। originally come from India, तो ये जो तीसरी जो modern धार्मिक बात है, India जो धार्मिक should pay जो more ज्ञान है attention वो हम लोगों को तिब्बत से, these भारत ancient से Indian knowledge तिब्बतियों लोगों को मिला है। and और जो कि secularly, जैसे कहते हैं कि not प्राचीन religious भारतीय thing, विद्या, तो प्राचीन भारतीय not विद्या ये considered भारत as a से गई हुई religion है। or Buddhism, तो इसको आप धर्म but के रूप में simply, मत देखिए, इसको बौद्ध for धर्म के example, रूप में, logic, दूसरे धर्म के रूप में you मत see, देखिए। ये एक सर्व लोगों what के is लिए, it? सभी लोगों के Simply उपयोग का है, the लाभदायक है। training our mind, जो sharpening जैसे our कि आप mind, प्रमाण की बातें देखें तो nothing to प्रमाण do को with अध्ययन Western करने life से हमारे or हमारी जो बुद्धि है heaven. उसको कुशाग्र Simply, बनाते हैं। this very तो life, इससे का अध्ययन we करने see, से पूर्व become more जन्म के लिए, peaceful. पूर्व जन्म की So बातें India, या फिर अन्य ahimsa, जो भी हो, उससे कोई non-violence, वो नहीं है। इससे over केवल आप 3,000 अपने आप years, को these प्रखर बना सकते concepts हैं। and और karuna, भारत में पिछले 3 वर्षों से compassion, जो कि प्रेम, that's the जो Indian करुणा का tradition. संदेश So भारत में रहा the है, ये modern भारतीय India परंपरा है। now should pay more attention इसलिए जो आधुनिक भारत है या to भारत के लोग preserve हैं, उनको जो non-violence प्राचीन भारतीय and विद्या है compassion. These उनको things संरक्षित करना चाहिए। अहिंसा, करुणा, India इनको have the संरक्षित करना what is the चाहिए। possibility to combine inner और भारत value में इनको, and जो कि भारत material में ऐसी value. क्षमता है कि आंतरिक जो मूल्य हैं और भौतिक मूल्य combine. हैं, इन दोनों को So साथ that's ले why सकते हैं। the इनको latest दोनों को साथ लेकर के चल सकते हैं। what's the तो ये जो मेरा जो Fourth कमिटमेंट है कि भारत की commitment. प्राचीन विद्या को Like that. संरक्षित किया जाए, तो ये So मेरा now here चौथा you, कमिटमेंट है। as a human brothers sisters, तो आप लोग मेरे think भाई about my बहन, four commitment. तो मैं जो कह रहा हूँ If उसके you बारे find में आप some सोचें। useful, अगर then आपको लगता है try कि to मैं जो कह रहा हूँ implement वो अच्छा है, तो and उसको then आप share उपयोग में लाने की कोशिश करें with और दूसरों more को भी बताएं। young people. और हो सके तो ज़्यादा से Today's ज़्यादा जो world, युवा वर्ग too है much materialistic उनको अगर thinking, बताएं हैं। तो क्योंकि आज के not समय much का sort of जो विश्व thinking है about ज़्यादातर our inner भौतिक value. विकास पर सोच रहा है, कोई भी ज़्यादातर And आंतरिक जो मूल्य है उस पर psychologically, ध्यान नहीं देता। this is say, I think a modern education, modernity only sort of concern sensorial consciousness. तो जहाँ तक मॉडर्न के Not जो much के thinking बातें हम कर रहे about हैं, the sixth आधुनिकता की mind. जो बातें करते हैं, तो उस पर Sixth ज़्यादातर mind, हम जो हमारे you see, without जो इंद्रिय ज्ञान है, जो इंद्रियों की what's the- पूर्ति करने के लिए ज़्यादातर विचार करते हैं। और depend हम लोग जो on हमारा जो eye छठा, consciousness, ear जिसको हम चित्त consciousness, कहते हैं, मन कहते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं the देते smell हैं। consciousness, all these ignore. और ज़्यादातर हमारी But घ्राण sixth mind, इंद्रिय there और जीवा इंद्रिय इत्यादि जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उन पर ध्यान इतनी देने की जरूरत नहीं है। तो हमें basis of जो हमारा shamatha, छठवां single जो pointed जो है meditation, उस पर ध्यान देना चाहिए, खास vipassana, करके समथ पर analytical ध्यान देना meditation. चाहिए और These two विपश्यना जो are पर related ध्यान with देना sixth चाहिए, mind, इसको सीखना not चाहिए। senses of तो जो organs. विपश्यना और समथ है वो हमारे छठवें जो So these, जो चार सेंस कहा जाता है, अर्थात इसको मन या चित्त I जो भी think, कहें उस पर निर्भर this is करता now है। in modern time, तो materialistic मुझे life लगता है कि now आधुनिक pay समय में जो कि more about our inner value. Firstly, inner sixth mind, like that. So now questions and any sort of what's the advice from some what's the professors. तो इसके बारे में जो आप Yes. प्रोफेसर्स हैं, कुछ एडवाइस हो, आपके कुछ संदेश देना चाह रहे हैं? Yes. Good morning, His Holiness. My name is from Thailand. I am 24 years old and currently a marketing strategist. And my questions today is, when it comes to compassion, why is it तो मेरा easier आपसे to be प्रश्न है, मैं compassionate थाईलैंड से to हूँ। others जब rather करुणा than की to बात ourselves? आती है तो स्वयं के बजाय दूसरों के प्रति दयालु होना आसान As क्यों हो जाता? some खुद पर तो हम scientists say, दयालुता see, नहीं we दिखा are पाते social हैं। animal.
दूसरों पर कैसे हो सकते हैं, दूसरों पर कैसे हो जाते Eventually, हैं। I तो said, वैज्ञानिक लोग when कहते we हैं born, कि हम लोग the इसके उत्तर में mother कि uh, कि विज्ञान लोग provide us sort of immense compassion, nothing to do with religion. The children also, you see, without that, we can't survive. की आवश्यकता होती है, कोई धर्म So की that's आवश्यकता वहाँ पर नहीं है। the, बिना the माँ way के start our कोई भी life. जीवधारी जीवित नहीं रह So सकता the है। तो माँ से loving हमारा kindness जो from जीवन other प्रारंभ होता है, is तो till दूसरों की or प्रेम और death करुणा और very मैत्री important. Dying और person, मृत्यु तक का जो प्यार he है, जो may, स्नेह that है, person वो बहुत may have महत्वपूर्ण है। a lot of gold, diamond, sort of मान लीजिए कोई diamond व्यक्ति हो or जिसके things. पास बहुत सारा Oh, say हो, that dying person no sort of get inspiration. मृत्यु हो रही हो, Inspiration. तो मृत्यु के The समय dying उसको कोई person लाभ नहीं हो सकता is है। surrounded with human being with showing genuine sense of concern. Then the dying person feel happy. तो अगर So मान our लीजिए life मृत्यु के समय कोई begin व्यक्ति with human जो पड़ोसी compassion. अड़ोसी आकर के उसके साथ At the end of खड़े our होते हैं, life, उसको सांत्वना surrounded देते हैं, तो with उसके मन को compassionate शांति person, मिलती है, the खुशहाल dying होता है। person much happier. So that we should इसलिए know. And जो then करुणा अगर those ज्यादा who रहेगी तो मृत्यु billionaire के समय उस करुणामयी व्यक्ति or को ज्यादा सुख होगा, leaders तुलना में जो बहुत रईस है, अमीर है, without compassion, without inner peace, they actually may not be happy person. Always anxiety, अगर जो always धनी sort of व्यक्ति हो, scared अरबपति भी हो, or उसका करुणा suspicion मैत्री नहीं like है, that. वो खुश नहीं रह So सकता है, therefore, उसके अंदर हमेशा the संदेह रहेगा, उसे हमेशा डर रहेगा। तो जितना करुणामयी the है, जितना compassion आपके अंदर is प्रेम और very, very मैत्री है, important. आप उतने ही खुशहाल होंगे। Should not consider तो इसलिए compassion करुणा is मैत्री some religious matter. को अपने अंदर No, रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। it's तो for लोग ये आप human beings मत सोचिए कि survival करुणा like मैत्री that. कोई धार्मिक बात है, ऐसी बात नहीं है। तो जो कंपैशन और करुणा Next, ये हमारे जीवन के लिए है, जीवन जीने के लिए। तो अगला प्रश्न question is from Hong Kong young adults. Hong तो Kong. हांगकांग से पूछा जा रहा है। Yes. Morning, His Holiness. My name is Wee, and I'm from Hong Kong. I'm currently a movie maker, and I'm 29 years old. तो बोल And my question today is तो mental प्रश्न bullying पूछना on internet चाहिए makes young कि इंटरनेट पर people मानसिक self-harm प्रताड़ना or से जो even आत्महत्या करते suicide. हैं, So क्या how कर should सकते the youth handle their emotions युवाओं को कैसे and face all this negativity that impacts them? Thank you. Karsa. Rangida. Kare. Chajeto ne. I believe, our intelligence actually entirely belongs to ourselves. So we can तो look different ideas, different sort of ideology or even different religion, but the ultimate sort of decision up to ourselves. So Buddha, now for example, Buddha himself, you see, told us, "O my follower, should not accept my teaching out of faith, but rather thorough investigation. Through that way, if you find some useful, then you accept, then you follow." So therefore, the individual intelligence, great role. So we should not sort of follow some kind of just faith or investigation. That is very important. My own case, I'm Buddhist. From childhood, I study this Nalanda tradition, logical approach. So even Buddha's own word, we always raise question, why Buddha say that? Then investigate.
So therefore, that very useful. Not just faith, not belief, but investigation, like that. So you, young person, utilize your intelligence, unbiased, neutral, and then more investigation. Then every sort of your work, your life, you see, through investigation, analyze, then you find now this way is the best, and you also can seek some of your trusted friends' views, then follow that. तो भगवान बुद्ध ने भी, माफ करिएगा, There's some कुछ problems facing, तकनीकी वजह से so आप no लोग regret. नहीं सुन पा I रहे थे। try तो भगवान बुद्ध ने भी हमेशा यही कहा है कि आप and seek some हमेशा आप advice. परीक्षण करो। So कोई भी that's- बातें हैं, कोई भी that's चीज़ the हो right उसको आपको ऐसे नहीं way मानना or right चाहिए path. तो वो सही तरीके से है My कि own नहीं, case. सही चल रहा है कि नहीं, Now, उसको परीक्षण करना चाहिए। मैं अपने ही उदाहरण दूं कि 85 अभी मैं 85 वर्ष का हो गया हूँ। about I think 13, 14 I lost my freedom. तो जब मैं 13-14 वर्ष का था Then तब से मेरी आज़ादी छिन गई। my age around 20 और फिर I become refugee. और फिर 20 वर्ष के आसपास जब हमारी उम्र थी उस समय मेरा देश छूट गया। Since 59 और 1959 के लेकर के बहुत सारी समस्याएं हुई, बहुत सारी दिक्कतें भी आई। As I sort of mentioned already, so when difficult तो मैंने अभी तक बहुत सारी समस्याओं का सामना भी किया है। I decide this decision out of thorough investigation. Now this is best. तो फिर मैंने उसके बाद पूरा इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल करने के दौरान यही पाया कि जो भी चीज़ें हैं तो जो भी इसके परिणाम हैं तो उस समय विचलित नहीं होना है। Now we Tibet, India, historically very close link. So now India, the democratic country. और भारत के साथ जहाँ तक देखा जाए तो बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहे हैं, अभी तक संबंध रहे हैं। 60 years. तो पिछले 60 सालों से I enjoy the India's freedom. Okay. और मैं भारत में रह करके भारत की जो स्वतंत्रता है उसका मैं लाभ ले रहा हूँ। अर्थात कहा जाए कि जो भी हमारी धार्मिक व्यवस्थाएं हैं मैं यहाँ पर अच्छी तरह से संपादित कर पा रहा हूँ, रह पा रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन फिर एक मलेशिया के स्टूडेंट के द्वारा किया जा रहा है। My name is Jajen and I'm from Malaysia. I'm 20 years old this year. Here is my question. I was retrenched from work under current recession. तो आपका प्रश्न है कि वर्तमान मंदी के तहत मुझे काम से निकाला जा रहा है, क्या यह मेरे बुरे कर्मों का कारण है? मैं इससे कैसे उबरूं? क्या धर्म मदद करता है? You are young. तो आप परम्परा जी कह रहे हैं कि आप तो अभी युवा हैं, तो आपका अभी जो भविष्य है काफ़ी लंबा है। With feeling of hopelessness. तो आप लोग को एक प्रकार से हतोत्साहित नहीं होना है, हतोत्साहित बिल्कुल नहीं रहना है, परेशान नहीं होना है। तो टेम्परेरी रूप से अगर देखा जाए तो कुछ समस्याएं आ सकती हैं। आपको आत्मविश्वास जगाते रहना है और जो आपका सकारात्मक दृष्टिकोण है उसको रखें। तो कुछ समस्याओं की वजह से अगर आप अपनी उम्मीद छोड़ दें
आप हतोत्साहित हो जाएं तो ये आपकी गलती I होगी। think, आपको हतोत्साहित नहीं होना है। see, many past or say the great people, तो आप including पूर्व में जो भी religious महान leader, लोग हुए हैं और through यहाँ तक कि धार्मिक difficult लोग भी, तो उनको आप experiences देखिए, and then तो उनको determined, आप कितने they had to मुश्किलों carry से वो their निकले हैं, effort वो कितने दृढ़ निश्चय से निकले हैं, tirelessly, कितनी मेहनत and करके then निकले win. हैं। So वो लगातार you, वो मेहनत करते young रहे हैं। brother, you should not तो इसलिए आप लोग अभी युवा हैं, think, आप you अभी should discourage. आपकी Now उम्र I ज़्यादा lost नहीं है, तो my job आपको or बहुत ज़्यादा something. हतोत्साहित नहीं होना Don't think that कि way. मेरा काम छूट गया, मैं ऐसे हो गया। इस Okay. प्रकार से आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। Now next. Your Holiness, the next question is a young lady from फिर Singapore. अगला, तो ये भी सिंगापुर से एक लड़की का प्रश्न है। I'm Saint, a 20-year-old currently studying in Singapore. And my question is, with the तो millennials इनका becoming प्रश्न है less religious, कि 20 do और you 30 think that जो आयु वर्ग के religion will लोग still कम have धार्मिक a हो रहे huge हैं, impact परम in पावन जी Vietnam को क्या today? ऐसा लगता है कि आने वाले Consumption. 20 और 30 वर्षों में कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ. तो आज के जो युवा वर्ग है उसमें धर्म के प्रति ज़्यादा आस्था नहीं रख रहे हैं, तो अगले आने वाले 20-30 वर्षों में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या परिवर्तन आएगा? तो मैंने पहले भी कहा कि आप धर्म को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अगर shopping, visit, see people showing more smile, you feel happy, isn't it? तो उदाहरण के रूप में अगर आप बाजार जाते हैं और कोई आपको देख करके मुस्कुराता है तो आप ज़्यादा खुश होते हैं। तो अगर आपके प्रति कोई देख करके एकदम क्रोधित होता है, आपको एकदम अजीब सा चेहरा दिखाता है, तो फिर आपको भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसके आपसे इससे सिद्ध होता है कि कोई किसी धर्म को माने या न माने, तो सबसे महत्वपूर्ण या धर्म के जो सार है वो हमारा एक अच्छा हृदय है, अच्छा दिल है। तो आप जानवरों को भी देखो, ये कुछ कुत्तों को भी देखो, जब आप उन पर अगर मुस्कुराहट अगर उनकी तरफ दिखाते हो, उनके ऊपर हाथ फिरा देते हो, तो उनकी आप पूंछ देखिए एकदम हिलाने लगते हैं, खुशी खुशी पूंछ को हिलाने लगते हैं। अगर आप उसी कुत्ते को अगर आप गुस्सा करते हो, क्रोधित होते हो, तो फिर ज़्यादा ठीक नहीं रहता है। तो हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज में एक साथ रहना है। और भले ही कुछ ऐसे भी हों कि जो अभी आपके जो शत्रु हैं, कुछ समय बाद आपके मित्र भी बन जाते हैं। वो तभी संभव है कि आपके हृदय पर डिपेंड करता है, आपके दिल पर डिपेंड करता है, और आपके जो आपके विचार हैं उस पर निर्भर करता है। तो ये मैं मानता हूँ कि अच्छा एक व्यक्ति बनना चाहिए। तो आधुनिक समस्या यहाँ पर आती है कि आधुनिक समय में लोग जो आंतरिक मूल्य हैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो कि भौतिक विकास उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसकी वजह से समस्याएं हो रही हैं। Inner value, not religion, but inner value. That's very important. तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आंतरिक जो मूल्य हैं उनको बढ़ाएं। भले ही आप कोई धार्मिक हो चाहे न हो, जो आध्यात्मिक चीज़ें उनको भी बढ़ाना चाहिए। तो जो हमारी आध्यात्मिक बातें हैं और जो प्रेम और करुणा की हैं, ये भी हमारे स्कूलों में या शिक्षा प्रणाली में डालना चाहिए। तो आप लोग अभी युवा हैं, युवा वर्ग के लोग हैं, तो आपको भी जो अभी हमारी जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है उसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन होना चाहिए, और आप लोगों को भी इसके बारे में चिंतन करना चाहिए। Okay. Now next. Your Holiness, the next question is from Vietnam, a student.
तो अभी अगला प्रश्न Yes. एक वियतनाम के एक छात्रा का है। तो वो प्रश्न पूछ रही हैं कि एक 21 वर्षीय छात्रा है। तो वो पूछ रही हैं कि यही एक वास्तविकता है कि हम एक दिन मर जाएंगे और यह हमारे अंदर भय पैदा करता है। हम इस भय से मुक्त कैसे हो सकते हैं और दूसरों को भी उसी भय पर काबू पाने में मदद कैसे कर सकते हैं? तो खुद तो भयभीत हो ही जाते हैं कि हमारी मौत होगी, तो हम लोग सभी डर जाते हैं। तो दूसरों को भी इस डर से कैसे बचाना चाहिए? Oh, I think Buddha also passed away. And तो last तो भगवान बुद्ध को भी आप देखें तो वो भी उनका भी वहाँ पर निर्माण हुआ। 2000 years marbe chunde chune तो 2600 वर्ष 2500 years 2600 वर्ष पहले वो भी गुजर गए, उनका भी वहाँ पर निर्माण हुआ। great saint. उसके बाद आप देखो कि बहुत gone. सारे So योगी, that's quite nature. बहुत बड़े विद्वान, So we सारे also सारे लोग मृत्यु को प्राप्त eventually हुए। have to die. तो हम लोगों को भी एक समय में मृत्यु को प्राप्त why होना है, we ये alive? सत्य है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, life जब should हम be जीवित हों, meaningful. जीवित हैं, तो उस समय That अपने जीवन को brings अर्थपूर्ण बनाना चाहिए। inner happiness, तो satisfaction. अगर आप अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाओगे तो ये खुशहाली लाता So है, even हमें संतोष you देता see, है। next week supposed to see dying next week, still अगर मान लीजिए कि अगले हफ्ते हमारी मृत्यु हो रही हो, होने जा रही हो, share फिर भी एक सप्ताह के this दौरान more deeper human value with your तो friend. जितना हो सके Then at the अपने time of मित्रों के dying, साथ जो no regret. आंतरिक मूल्य हैं, जो प्रेम और करुणा है, वो अगर अपने मित्रों में बांटोगे तो मृत्यु के समय भी आपको कोई पश्चाताप नहीं होगा। Yes. आप खुशी खुशी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। अगला प्रश्न इंडोनेशिया से किया जा रहा है। Good morning, Highness. My name is Stephanie Surya from Indonesia. I'm 35 years Or old. Indonesia, huh? Yes. Currently, I'm working at e-commerce company. My question is, if we तो cannot आपका find प्रश्न है happiness कि अगर हम बाहरी रूप से, we will बाहरी try जो to भौतिक विकास है, explore it सो खुशी नहीं पा internally. सकते हैं, तो With हम this आंतरिक रूप से इसका challenging पता लगाने की कोशिश situation, करते हैं, we करेंगे। have इस more चुनौतीपूर्ण exploring मौजूदा जो स्थिति है, हमारे पास आंतरिक सुख से how पाने can के we अधिक make अवसर हैं। it हम इसे अपना नया our आदर्श या people कमी कैसे बना and सकते हैं, our अर्थात कहने का normal. अर्थ है यहाँ पर ये Thank पूछ रहे हैं you. जो ये समस्या है तो उसको हमें एक कमी के रूप में देखें या एक अवसर के रूप में देखें, तो किस रूप में देखना चाहिए? Now, as already I indicated, the existing modern education तो जैसा कि not मैंने much पूर्व talk में भी कहा about our कि mind, अभी का about जो our आधुनिक inner peace. जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें You see, आंतरिक मूल्यों के people बारे में ज़्यादा sometimes ध्यान नहीं feel देते हैं, ज़्यादा they, उसके बाद when इन we लोगों को talk नहीं about बताते हैं। inner value, then depend on religion. तो जब आंतरिक भावों की बात, मूल्यों की बात As हो I तो वो mentioned लगता है earlier, कि ये you see, किसी धर्म की बात है, उस पर निर्भर है। inner value without touching religious faith. तो that we can आंतरिक do. जो मूल्य हैं So now modern उनको education, किसी धर्म पर purely बिना आश्रित रह करके उसको education, समझा जा सकता है, nothing to do with उसको religion, लागू किया जा सकता है। but तो education जो हमारे जो should व्यवस्थाएं हैं, include करुणा, मैत्री इत्यादि हैं, education उसको about धर्म की material कोई thing, आवश्यकता नहीं है। science and technology. तो शिक्षा में जहाँ तक Meantime, बात हो तो education चलो ठीक है, about आप our लोग emotion, विज्ञान और about our तकनीकों mind. को तो सम्मिलित That's करेंगे ही करेंगे, उसके साथ lacking साथ now, अगर today's हमारी जो existing भावना education. और हमारी जो कि करुणा, Education, मैत्री, ये जो should शिक्षाएं हैं वो भी include शिक्षा में अगर डालेंगे knowledge about तो ये the बहुत material महत्वपूर्ण thing, होगा। including our क्योंकि physical ये thing, जो करुणा, and मैत्री should के जो include जो our mind, शिक्षाएं हैं वो our हमारे emotion. शिक्षा प्रणाली में Then एक with प्रकार that, से कमी है। like our physical, facing some illness, you see, we take मान लीजिए कि as a हमें जब method कोई to बुखार या cure फिर that, बीमारी होती है according to तो the उसको illness. ठीक करने के लिए हम Similarly, लोग डॉक्टर के mental पास जाते problem, हैं या फिर इस when शरीर को ठीक करने की develop, कोशिश करते हैं। so उसी प्रकार से is हमारे how to मन में भी tackle विकार our आते हैं, mental तो मन को mental ठीक problem. करने के लिए, इन विकारों को ठीक As करने part के of लिए education, भी हमें ये जो हमारे आंतरिक that I मूल्य हैं think उनको modern डालना education, चाहिए, उनको I सीखना feel चाहिए। lacking that. तो मुझे हमेशा यही लगता है So कि जो I think आधुनिक शिक्षा है in
शिक्षा प्रणाली है उसमें ये चीज़ों की कमी है, और पाश्चात्य देशों से जो आधुनिक शिक्षा प्रारंभ हुई तो उन्होंने जो धार्मिक, जो कि आध्यात्मिक, जो आंतरिक मूल्य है उनको उन्होंने छोड़ दिया, और इन चीज़ों को उन्होंने समझा कि ये चीज़ें धार्मिक चीज़ें हैं। Not necessarily, you see, faithful. So therefore, without touching religion, we should. तो जहाँ तक बौद्ध धर्म की भी बात है, कोई बात करें तो बौद्ध धर्म में भी ये नहीं है कि आप को जो है कि इन चीज़ों को, हालांकि कहा जाता है इनको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, और किस प्रकार से अपने जो हमारी भावनाएं हैं उनको संतुलित करें, अपने चित्त का परिशोधन करें, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। The tradition, some meditation. और हम एशियन जो देश हैं उन लोगों की एक जो व्यवस्था है, तो एशिया के लोग ध्यान करते हैं, या फिर एक व्यवस्था है। और एशिया के लोगों को ध्यान के बारे में जानकारियाँ भी हैं, लोग समय समय पर करते हैं, विपश्यना करते हैं, समथ का भी अभ्यास करते हैं। Spend few moments, you say, don't think about seeing or hearing these things. तो इसका अर्थ है यही है कि जब आप समथ का अभ्यास कर रहे हो तो समय अपने चित्त को इधर-उधर भटकने, जो आपका चित्त भटकता रहता है तो उसको एक जगह पर लाएं, सिंगल पॉइंट पर लाएं, एकाग्र करें, तो उसको अपने चित्त के द्वारा परिशोधन भी करें, उसको देखते रहें। Usually we simply, you see, following sensorial consciousness. Now sensorial consciousness neutralize. तो अक्सर हम जो भौतिक, जो हमारी इंद्रिय, जो आराम है, इंद्रिय ज्ञान है, उस पर आधारित रहते हैं, तो इसको धीरे धीरे आपको इंद्रिय जो भी हमारी अनुभव है उसको त्याग करके जो हमारे चित्त है उसके ऊपर लगाना चाहिए, तब जा कर के आपको सुख और शांति मिल सकती है। अपने चित्त को एकाग्र करने की आवश्यकता रहती है। तो यही कोशिश करना चाहिए कि जितना हो सके वो हमारे एक प्रकार से अंदर से हो, गहराई से हो, दिल की गहराई से हो। तो वो कैसे करें कि सबसे पहले आप समथ में रहें, विकार जो हमारे अंदर विकल्प आ रहे हैं उनको देखें, फिर उससे अपने चित्त को एक साथ करने के बाद फिर जा कर के जैसे जैसे आपकी जो मानसिक एक प्रकार की क्षमता बढ़ जाए तब जा कर के आप विपश्यना का अभ्यास करें, उसका परीक्षण करें कि जो भी चीज़ें हैं उनका वास्तविकता किस प्रकार से है। तो आधुनिक शिक्षा पूर्ण रूप से जो हमारे भौतिक है, भौतिक चीज़ें हैं उस पर ज़्यादातर ध्यान दे रही है। जो पांच इंद्रियों उस पर ज़्यादा विशेषकर आधारित है। छठवां जो मन है, जो हमारी जो चित्त है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो आप जो युवा वर्ग है उसको इन पर ध्यान देना चाहिए। तो क्वांटम फिजिक्स के अनुसार भी देखें तो वो भी जो चीज़ें दिखाई देती हैं उसको वैसे के वैसे नहीं मान लेते हैं, उनके बारे में परीक्षण करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं कि कोई भी चीज़ जो हम देख रहे हैं वो उसकी वास्तविकता क्या है। और क्वांटम फिजिक्स के वैज्ञानिक कहते हैं कि जो चीज़ें, जिस चीज़ को हम देखते हैं और जो वास्तविकता होती है उसमें फ़र्क होता है। जिस प्रकार से हमें दिख रहा है उस प्रकार से सत्यता नहीं होती है। One my Indian friend told me, expressed to me, quantum physics in the West something new. In this country, in East, quantum physics over 1,000 years already developed. That's very true. तो क्वांटम फिजिक्स जो है कई हजार वर्ष पहले यहाँ पर हुई है, ये बात सही है, सत्य है। Of the emotion come on appearances. और ज़्यादातर जो हमारे अंदर जो सुखद या दुखद भावनाएं पैदा होती हैं
तो किन चीज़ों को हम देखते हैं the उनकी वजह से appearances ज़्यादातर is होती हैं। something तो good, जैसे something जैसे bad. हम उनके गहराई में That is the जाएंगे, basis उनके of बारे में all जानकारी emotion. रखें, अच्छाई और बुराई के बारे So, में to जानेंगे, go deeper level, then you see जब वो तभी संभव everything हो सकेगा जब आप particle. गहराई में जाकर Now, for के example, the अच्छी तरह से उसको material समझने की thing, कोशिश करेंगे, everything तो particle, वो सत्यता को समझ सकते nothing हैं। sort of और solid. जो भी चीज़ें हैं वो Then the सारे very सारे अणुओं basis of में, anger, पार्टिकल्स में very basis of के द्वारा attachment, बने हुए no हैं। longer there. तो इसलिए जैसे जैसे सत्यता One जान लेंगे, Buddhist जिन चीज़ों को हम was a देख रहे हैं concept, वो भी वे क्षणिक shunyata. है, अणुओं परमाणुओं से बना है, तो उसके use प्रति फिर हमारी Sanskrit word आसक्ति नहीं रहेगी। shunyata, आसक्ति नहीं रहेगी तो हमें emptiness. क्रोध नहीं आएगा और एक दूसरे Also, you ईर्ष्या नहीं see, रखेंगे। तो भगवान बुद्ध things के जो does दर्शन है not उसमें भी exist है as कि appears. जो हमारी जो At the शून्यता, deeper जो level, दर्शन दिया गया, or तो शून्यता के you अनुसार see भी कहा nothing जाता है कि जिन as चीज़ों को हम appears. देख रहे हैं, तो उसका कोई भी चीज़, कोई भी So जो है this, स्वभाव से सिद्ध नहीं होती है। उसका if कोई गहरा you एक सार देखा जाए वो have नहीं some होता है। interest, and then think, study about quantum physics. अगर आपको I think थोड़ा very सा useful. इसके प्रति इंटरेस्ट है, रुचि है, तो आपको थोड़ा क्वांटम फिजिक्स भी पढ़ने चाहिए कि Modern तभी आप जान psychologists सकते हैं कि and वास्तविकता quantum क्या है, physics सत्यता क्या है। combine useful. और क्वांटम फिजिक्स Okay. और जो कि बुद्धिस्ट साइकोलॉजी, उसको दोनों को Thank you. साथ को अगर जोड़ोगे तो काफ़ी Singapore, लाभदायक है। young lady working in the interfaith organization. तो अभी yes. एक प्रश्न है, जो आंतरिक Good धार्मिक morning, Your Holiness. My name is उस Navul संस्था में Fatima. काम करने I'm वाली a हैं, working adult and I also तो एक volunteer क्वेश्चन with जो Ashram's सिंगापुर से movement. पूछा जा रहा My है, question is, तो despite इनका the प्रश्न है various efforts to कि विभिन्न promote मान्यताओं के religious लोगों के harmony, बीच सामाजिक religious सद्भाव को बढ़ावा देने के extremism कई and प्रयासों के बावजूद consumerism continue to धार्मिक grow in अतिवाद और parts of the world. विशिष्टता अभी भी बढ़ती How दिख can रही है। young people इस like मुद्दे से us निपटने के लिए युवाओं do को something कैसे to help with सशक्त this बनाया issue? जा सकता है? Thank you. 가서 쭉. 계셔지다. As I already mentioned, the existing children from their young age, see, they are not sort of no opportunity to study about basic mind and pure और these things. जैसे कि आप बच्चों को देखें, तो जब बच्चा So now, स्कूल as में I जब जाता है, mentioned, तो उस समय जो existing हमारा जो education चित्त है या मन है, system उसको पढ़ने very का much अवसर sort नहीं of मिलता, oriented उसके बारे about में ज़्यादा material जानकारी value, नहीं आती and है। then और there भौतिक विकास you किस see, प्रकार से हो सके, the तकनीक इत्यादि के बारे very में much शिक्षाएं lacking दी जाती हैं। deeper understanding about तो इसलिए basic जो भी बच्चा होता है, वो mind जो हमारी जो or nature of मूलभूत mind or nature जो of ज्ञान human है, being. मूलभूत जो जरूरत है, So, जो हमारी प्रकृति है, उसको नहीं समझ पाते हैं। So now, religion in a superficial, then sometimes as a faith also become disposal of, or say the basis of we and they. तो उसके साथ साथ हमें और वे इस प्रकार की भावना की वजह से बहुत बड़ा एक अंतर आ जाता है। और हम जो कि जहाँ तक हम सभी के बारे में सोचना चाहिए, वो न सोच करके हम अलग अलग करने लगते हैं, दूसरों को लोगों को अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग जाति, अलग अलग रंग, अलग अलग देश, अलग अलग धर्म, और धर्मों में के अंदर भी और अलग अलग जो परंपराएं, जैसे कि बौद्ध धर्म में भी देख लें तो पाली परंपरा, संस्कृत परंपरा, कभी तंत्र की व्यवस्था, फिर तिब्बत में भी देखें तो के जो के अलग अलग जो पीले, लाल या फिर जो के अलग अलग जो के उनके जो मुकुट हैं या सेक्ट कहे जाते हैं, तो उनकी अलग अलग परंपराएं, तो अलग अलग चीज़ें होती जाती हैं, इतने अंतर देखने को मिलते हैं। तो उसमें यही आता है कि मेरा धर्म, मेरी संप्रदाय, मेरा राष्ट्र, तो ये जो बातें जो मैं और मेरी, ये बहुत ही छोटी सोच है। और मुस्लिम में भी देखें कि शिया और सुन्नी, और फिर शिया सुन्नी के अलावा फिर अलग अलग राष्ट्रों में भी आप देखें कि
Muslim ईरान, country. सऊदी अरबिया, And जहाँ पर के unfortunately, मुस्लिम in लोग ancient time ज़्यादातर also, हैं, religion very much used by as the king or queen. तो प्राचीन समय में So, भी जो धर्म है उनका government एक प्रकार से also पालन used to carry one राजा sword. महाराजाओं के द्वारा भी किया जाता था, So now modern time or और उस ancient समय time, भी लोग हथियार it's a इत्यादि लेके political जाते थे, power तलवार and इत्यादि लेकर religious के जाते faith. थे। Sometimes they go together. तो कभी कभी आजकल So, जो समय feudal राजनीति और system धर्म कभी is कभी साथ साथ utilized चले जाते हैं। religious faith. Now that gone. Now, तो as I mentioned सामंतवादी earlier, जो we व्यवस्था must थी उसमें भी see धर्मों का emphasis मानते थे, oneness लेकिन ये of सब पुरानी बातें जो humanity. भी हैं These वो religion चली गई। is लेकिन personal आधुनिक समय matter, में हमें सोचना चाहिए कि इस secondary. धर्म को अपने So we should व्यक्तिगत think आधार that पर way. किस प्रकार से As a हमें Muslim, उपयोग में लाएं, किस प्रकार से लाभ हो। I have, you see, many good friends, Muslim. तो मेरे बहुत सारे अच्छे मुस्लिम in मित्र हैं, Lhasa. जैसे कि उदाहरण Some के रूप Muslim, में Ladakhi मैं Muslim, ल्हासा में का very देना peaceful. चाहता हूँ No record कि वहाँ पर of बहुत quarrel. सारे जो कि ल्हासा के जो There's a मुस्लिम हैं Tibetan, वो very good लद्दाख से Tibetan आए हुए थे, monk तो उनमें found कभी झगड़ा इत्यादि नहीं visit देखा जाता है। लद्दाख में भी जो Mongolian मुस्लिम हैं Kazakh, उसमें भी कोई झगड़े Islam, इत्यादि नहीं देखे जाते हैं। Muslim sort of shops, and they also talk very nice, very peaceful, like that. So तो जो जब बातचीत भी अगर वो करते हैं, जो संवाद करते हैं, तो वो बहुत अच्छी तरह से बातें भी और संवाद भी करते हैं। तो इस प्रकार से देखें कि ल्हासा में भी मुस्लिम लोग भी रहते हैं, तो वहाँ भी एक प्रकार से सुख शांति है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैं अपने अनुभव से कहूँ कि जो लद्दाख के मुस्लिम हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। I really fond the Muslim food. तो मैं जो है मुस्लिम लोगों का जो भोजन है उसका काफ़ी शौकीन हूँ। तो कभी कभी जब लद्दाखी डेलीगेशन जब मुझसे मिलने आते हैं या मुझे निमंत्रण करते हैं, निमंत्रण देते हैं, और तो मैं कहता हूँ हाँ मैं आऊँगा, और फिर उसके साथ साथ मैं आपके यहाँ लंच भी आकर के करूँगा। तो मुझे कि उनके साथ अच्छा लगता है कि उनके साथ खाते हैं, पीते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं। तो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हों, चाहे बुद्धिस्ट हों, चाहे सिख हों, तो ये धर्म जो भी है वो अपने अपने व्यक्ति विशेष के हैं। आप अपने अपने स्तर पर अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक प्रेम, करुणा, मैत्री की जो बातें हैं वो सभी के लिए, सभी के समान हैं। और हम एक सामाजिक प्राणी हैं, तो हमको एक दूसरे के साथ साथ रहना भी है, तो अच्छे से सामंजस्य बना करके रहना चाहिए। तो इसलिए जो कि व्यक्तिगत आधार पर एक दूसरे के साथ संबंध बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जहाँ लद्दाख के मुस्लिमों को भी देखें कि बुद्धिस्ट जो समुदाय है उनके साथ साथ अच्छी तरह से रहते हैं, एक प्रकार से सहजता से रहते हैं। और जो मुस्लिम देश जैसे शायद सीरिया या देश तो एक भी अलग थलग जैसे होते हैं, तो उनको एक दूसरे से मिलने के एक अवसर नहीं मिलता है, दूसरे धर्मों से मिलने का अवसर नहीं मिलता है। तो इसलिए शायद धर्मों के बीच थोड़ा अंतर या फिर उनके अंदर एक जो सोच है वो अलग अलग होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास ऐसे हों कि एक दूसरे से ज़्यादातर मिलें, संवाद करें। तो लद्दाख में हमारे कुछ मित्र हैं जो मुस्लिम मित्र हैं, तो मैंने उनको सदा एक प्रकार से सलाह दिया कि आपको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो मुस्लिम का एक जो कि कॉन्फ्रेंस है, सभा करनी चाहिए, दिल्ली में करनी चाहिए, माफ़ करना कि राष्ट्रीय स्तर की ओर करना चाहिए। तो उसके लिए मैं भी मदद करूंगा, और उन्होंने ऑर्गेनाइज भी किया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम किया, तो उसमें ईरान से भी लोग आए।
तो मुझे लग रहा है कि इस प्रकार के जो मीटिंग्स हैं, संवाद हैं, level Muslim जो कि हर then वर्ष other होने follow चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए। join together. फिर उसके पहले मुस्लिम के साथ-साथ दूसरे So- परंपराओं के लोग भी साथ So आकर के we मिलें, need, उनको भी समझें, अपनी बात भी regular रखें। effort. तो इस प्रकार This is से some हमें kind of लगातार एक प्रयास religious करते रहना of चाहिए, international एकजुटता के religious sort of, होने के लिए conference. एक प्रयास करते रहना That's चाहिए कि important. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम धार्मिक सद्भाव कैसे बना सकें, एक दूसरे के साथ कैसे Okay. रह सकें, एक दूसरे के साथ किस Thank you, प्रकार से मदद Solidas. कर The सकें। next question will be from Indonesia. तो अगला क्वेश्चन फिर Yes. इंडोनेशिया से है। My name is Danish. I'm from Indonesia. I'm 26 and I'm a doctor. So my question is, can His Holiness explain to us the difference between तो loving यहाँ कह रहे oneself हैं कि and being क्या परम selfish? पावन Thank you. हमें प्यार करने और स्वार्थी होने के बीच का अंतर समझा सकते हैं कि हम प्यार करते हैं और प्यार वो स्वार्थ है या फिर ये स्वार्थ रहित है, वो किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। Now, if you think wider way, then everybody, you see, loves oneself and some kind अगर of आप उसे एक selfish, बृहत रूप में, always बड़े there. रूप में देखें तो If लोग you जो हैं really want you अपने बारे में individual, सोचते हैं, happy अपने व्यक्तिगत रूप individual. बारे में सोचते हैं, And तो ये since we स्वार्थ are वाली social बात होती है, ये animal, बात सही है। one individual तो हालांकि हम सामाजिक individual's प्राणी life हैं, सामाजिक जीव or हैं, successful तो life एक व्यक्ति की अपनी entirely एक depend जीवन on the के बारे community. एक जो So जीवन the है, best way और हमारा जो to जीवन है take वो care सारे के oneself सारे जो is समुदाय है, जो to हमारा take समाज है, the very उस पर basis निर्भर of करता our है। life. और ये Okay. जो समाज है या फिर समुदाय है, वे If हमारे you जीवन just का think एक आधार oneself है। selfish way, narrow-minded, केवल अकेले अपने आप Then बारे में सोचेंगे, you can't संकुचित survive. विचारधारा वाली सोच रखें, तो आप सर्वाइव very नहीं कर सकते, आप जी नहीं सकते survival हैं। or including particularly और हमारे happy जो life सुख और दुख entirely और depend on others. जीवन जीना, So ये we should दूसरों take पर निर्भर करता है care of कि हमारा others. जीवन ठीक रहेगा कि नहीं Others रहेगा, is ये हमारा very दूसरों पर basis निर्भर of करता है। our individual happiness or successful life. So therefore, now when we take care, now farmer take care about farmland, or उदाहरण के रूप because में जो their किसान life हैं, depend on farm, so take किसानों को care. देखो तो किसान खेती Not करते हैं, तो some खेती kind क्यों of करते हैं? compassion, क्योंकि but उनका because you जीवन see, उस पर निर्भर है। खेती न करें तो उनका जीवन नहीं is the चलेगा। farmers sort of the sources of their life, like that. तो ये जीवन चलाने का एक स्रोत बन जाता है। उसी प्रकार से हम भी What do you उन think? पर निर्भर करते हैं, उनके द्वारा Do you जो have some खेती argument? में जो पैदावार होती है। तो कह रहे हैं कि क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या मुझसे कोई मेरी बात पर कोई विरोधाभास है, कोई आर्गुमेंट है आपका? Tibetan sort of tradition study, we as the subject of logic subject, we always you see तो हम तिब्बती लोग जब अध्ययन करते हैं तो अक्सर हम लोग तर्क करते हैं, तो कोई बात हो सब बहुत ज़्यादा तर्क करते हैं। get used debate. तो मैं भी बचपन से इस तर्क शास्त्र में पढ़ा बला हूँ, तो इसलिए कोई बात अगर हो, अगर आपका जो मैं कह रहा हूँ उससे सहमत ना हो, तो आप उस पर आर्ग्यू कर सकते हैं, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। तो अभी फिर से एक क्वेश्चन सिंगापुर से है। Good morning, Your Holiness. I'm Leonard. I'm 23 from Singapore. I'm a student and a volunteer with Edge Peace. My question to Your Holiness is, what is the benefit of learning Buddhism if we are not Buddhist? Thank you. तो ये आप कह रहे हैं कि जो बौद्ध नहीं है तो उसको बौद्ध धर्म सीखने से क्या फ़ायदा है, जो बुद्धिस्ट नहीं उसको बौद्ध धर्म सीखने से क्या फ़ायदा है? Logic is very helpful to analyze things. तो मैंने पूर्व में भी कहा है कि जो लॉजिक है, जो तर्क है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसको उसके द्वारा आप चीज़ों को समझ सकते हैं। और उसके साथ साथ जो हमारी विपश्यना है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। Over I think 1,000 years, the Nalanda tradition
तो पिछले you see, हजारों वर्षों से actually very academic sort of institution. जो हमारी जो परंपरा रहा है या विश्वविद्यालय जो So रहा है therefore, वाकई एक विधिवत तरीके the- से in Buddhist स्थापित था, tradition, अच्छे अध्ययन किए according जाते to थे Nalanda tradition, we extensively use logical approach. और जो At the meantime, उस नालंदा scholars, परंपरा के अनुसार जो भी now उसके these things छात्र हैं आज भी जो भी अलग अलग देशों में जो उस Muslim परंपरा का brothers पालन or करते Christian हैं brothers, वो बहुत ही sisters, अच्छी तरह they से say, तर्क I करते think हैं worthwhile या उस पर एक प्रकार से जो मनन to, करते हैं। तो जो to अन्य learn. देशों के जो बौद्ध लोग हैं, Faith is your own personal matter. तो जहाँ तक So you श्रद्धा can की बात है keep तो श्रद्धा your own, आपकी अपनी किसी भी personal धर्म में faith. किसी भी चीज में हो सकती है, ये but आपका व्यक्तिगत intellectual मसला level, है। लेकिन जहाँ you तक see, these, आध्यात्मिक स्तर की बात Buddhist, हो uh, तो although ancient time, many ये Hindus, अलग, ये जो एक प्रकार से great देखा जाए scholars, ये अलग चीज lot होती of है। debate तो भारत में भी between नालंदा के Buddhist समय में scholars, Hindu बहुत scholars, सारे विद्वान हुए। भगवान then बुद्ध के gradually, समय के बाद भी नालंदा के समय में देखें कि बहुत सारे हिंदुओं में भी जो लोग विद्वान लोग हुए उनकी भी जो हमारे बौद्ध विद्वानों के साथ तर्क शास्त्र हुए। तो ये इतिहास को देख सकते हो। तो आज जो नालंदा हम कह रहे हैं, देख रहे हैं, तो आज केवल और केवल एक मिट्टी का ढेर बना हुआ है, वहाँ कुछ वैसी चीज नहीं रही है। लेकिन उसके निकले हुए जो विद्वान हैं, जो दर्शन है, आज भी स्थापित हैं। तो जो जहाँ तक चाइनीज और अन्य हैं, तो वो ज़्यादा धर्म का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक मंगोलियन, तिब्बती और इन देशों के लोगों को देखें तो इससे इसका अध्ययन करने से हमारे जो तर्क हैं वो बढ़ते हैं। हमको जो है और सीखने का अवसर मिलता है और इसके साथ साथ हमें और जो गहराई से समझ सकते हैं। तो जहाँ तक जो प्रमाण है, जो प्रमाण को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। तो चाहे आप धार्मिक हों या श्रद्धावान हों, एक तार्किक तरीके से अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से ये लाभदायक होता है। Yes. Now, next. Your Holiness, the next question is from Malaysia, the younger students in now, one of the younger students. Malaysia. Okay. Good morning, His Holiness. My name is Gigi. I'm from Malaysia. I'm 19 years old and currently a university student. My question is, तो ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं और 19 वर्ष की हैं। वो उनका प्रश्न है कि प्रौद्योगिकी और समाज तेजी से बदल रहे हैं और हम तेजी से आगे बढ़ने के लिए मजबूर हैं। एक बेहतर कल के लिए युवाओं को आज क्या सीखने की जरूरत है? As we already discussed, you see, we have this emotion, this mind. तो मैंने पूर्व में भी कहा कि हमारे अंदर या हमारे पास ये जो दिमाग है, मस्तिष्क है, तो ये कोई दिमाग कोई मशीन के द्वारा बना दिया गया हो ऐसा नहीं है। ये हमारी जो भावना है मशीन के द्वारा बनाई हुई ऐसा नहीं है। ये प्रकृति से आया हुआ है। ये हमारे आंतरिक वैल्यू हैं, इनको बढ़ाया जा सकता है। तो मैं पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि हमारी जो शिक्षा है, शिक्षा प्रणाली है, उसमें जो आंतरिक मूल्य हैं उनको डालना चाहिए। हालांकि हमने भौतिक विकास इसके बारे में तो बहुत अध्ययन कर लिया है, बहुत सारी व्याख्याएं हैं, लेकिन हमारे जो मस्तिष्क है या चित्त है, इनके बारे में बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं की गई। शिक्षा प्रणाली में इनको बहुत ज़्यादा सम्मिलित नहीं किया गया।
should include about our inner world, about our mind. तो हमारी शिक्षा में जो Now, हमारे जो मन my है, friend, जो आंतरिक मूल्य brain हैं, specialist, उनके बारे में शिक्षा you see, देनी they चाहिए। तो even मेरे you कुछ see, ब्रेन स्पेशलिस्ट मस्तिष्क के जो I चिकित्सक think हैं, डॉक्टर in हैं, the past till late 20th century, they और had no जो idea कि about mind, 20वीं only शताब्दी brain. के अंतिम समय Now, तक later part of वो 20th बहुत ज़्यादा century, now जो हमारा began ब्रेन to है, feel जो हमारा जो beside चित्त है, उसके बारे में brain, ज़्यादा जानकारी नहीं there रखते is थे। वो something केवल ब्रेन या which मस्तिष्क को actually मानते थे। affect उसके our बाद से brain. 20वीं शताब्दी के Now, अंत some में से special आकर के वो लोग भी मानने लगे हैं कि हाँ, specialist जो हमारा about मस्तिष्क है, brain. उससे हट कर के Now, चित्त रूप like के रूप में कोई चीज़ होती है। Richard Davidson, very great scholar about brain. So जो now रिचर्ड they, जो डिविसन हैं, तो last उन्होंने भी in जो the काफ़ी later बड़े part of विद्वान 20th हैं, century and तो beginning 20वीं of 21st शताब्दी के century, अंत में आकर you see के now और 21वीं शताब्दी those के scientists, शुरुआत में brain आकर के उन्होंने specialists, you see they बहुत सारे रिसर्च already किए हैं is some experiment. और बहुत सारे वैज्ञानिक आज भी बहुत सारी एक प्रकार से शोध कर रहे हैं और ऐसे लोगों पर शोध कर रहे हैं जो कि जिनके अंदर बहुत ही गहरा ध्यान साधना का अभ्यास है। तो जो व्यक्ति उस समय जब वो ध्यान कर रहे होते, ऐसे लोग जब ध्यान कर रहे हैं, उस समय उनके मस्तिष्क में क्या परिवर्तन आता है, ऐसा वो उन्होंने शोध किया। और आज वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे मस्तिष्क से हट कर के कोई मन या चित्त रूपी चित्त जो कहते हैं वो कोई चीज़ है। तो मन और हमारा जो मस्तिष्क है अलग अलग है। तो आज के जो वैज्ञानिक लोग हैं वो इस मन पर या चित्त पर बहुत सारे शोध कर रहे हैं। और ये जहाँ तक ये विषय है, वो विषय काफ़ी गंभीर है, एक प्रकार से विशाल है। और ये वास्तव में हमारा जो मन है परिवर्तन ला सकता है, परिवर्तन लाता है। तो मानव मस्तिष्क के द्वारा ही बहुत बड़ा परिवर्तन संभव है। जानवरों में इतना बड़ा परिवर्तन संभव हो वो नहीं कहा जा सकता है। Good morning, His Holiness. I'm Avilta. I represent Malaysia. I'm a doctor and a teacher and a seeker. So my question for you today is, what should be the true तो ये अविता intention to मलेशिया से achieve हैं। enlightenment? तो इनका प्रश्न है कि ज्ञान प्राप्त करने का सच्चा इरादा क्या है? क्या युग और समय के साथ बदलता है? तो इनका इंटेंशन क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या समय के साथ चीज़ें बदल जाती हैं या कि जिस प्रकार से पूर्व में जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उसी प्रकार से हैं? We must utilize the sixth mind's ability. तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि हमें अपना जो छठा ज्ञान है, जिसको हम चित्त या मन कहते हैं, उसको अपने उपयोग में लाना चाहिए, उसका ठीक से उपयोग करना चाहिए। जैसे चाहे ध्यान के द्वारा हो या समथ का अभ्यास हो या विपස්සना का अभ्यास हो। तो जब इनका हम अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा जो छठा जो चित्त है उसमें एक प्रकार से क्षमता बनती है, वो मजबूत बनता है, शक्तिशाली बनता है। और जहाँ तक बौद्ध एक दृष्टिकोण से अगर कहा जाए, जैसे कि जो कि भय है, आसक्ति है, तृष्णा है, ये सारी चीज़ें जो हैं जो हमारे अविद्या पर निर्भर हैं। और जो क्वांटम फिजिक्स भी है वो केवल जो चीज़ हमें परिलक्षित होती हैं, दिखाई देती हैं, उस आधार पर हैं। The very basis of emotion no longer active. Okay. So now और जैसे जैसे अभ्यास करेंगे तो फिर हमारे जो नकारात्मक विचार हैं वो नष्ट होते जाएंगे।
I think student और should जहाँ तक spend आज के समय में a भी few minutes स्कूल और कॉलेज में भी meditation, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पर some kind of कि जो कि thoughtlessness. छात्र कुछ Usually एक आध मिनट के लिए sensorial ध्यान sort of करें, उस consciousness. समय समत का अभ्यास करें, Then जिससे कि sensorial उनके अंदर consciousness बहुत जो is विकल्प आते रहते हैं then वो sixth ना आए। mind become more active. फिर उसके बाद जैसे जैसे ध्यान की Then जो अवधि है, समय sixth है, वो mind, बढ़ेगा और the फिर ability, और sixth ज़्यादा mind हमारा जो मन है increasing. एक जगह पर Then that एक प्रकार use से हमारा जो चित्त है और analytical ज़्यादा दृढ़ meditation, होगा, मजबूत होगा। analyze, फिर जैसे जैसे चित्त स्थित हो जाए, Before, फिर जाकर के समत का आप विपश्यना shamatha का अभ्यास करें is और विपश्यना का अभ्यास stand करते still, करते और उसकी single गहराई में pointed meditation. जाते रहें। और Then जब समत का vipassana, अभ्यास करें तो एक analytical एक पॉइंट meditation. पर या किसी बिंदु पर, जिससे हम कह सकते हैं एकाग्र हों किसी वस्तु पर, या फिर दूसरा जो अपने फिर उसके बारे में उसकी ये एक प्रकार से पड़ताल करें, जांच पड़ताल करें, एनालाइज उसको करें, एनालिटिकल विपश्यना। तो जो विपश्यना है बहुत ही महत्वपूर्ण है। is analytical meditation. तो मैं हर रोज मैं भी अपनी जो भी ध्यान साधना के अभ्यास करता हूँ तो मैं उसका अभ्यास करता हूँ। Then all those emotions और क्वांटम फिजिक्स में भी जो कहा जाता है, based on जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं, जिसको no सत्यता longer के रूप में sort of कहते हैं, जैसा दिखाई देता वैसे वास्तविकता नहीं होती है, तो उसी प्रकार से आप एनालिटिकल मेडिकल विपश्यना के द्वारा जब आप जांच पड़ताल करेंगे तो लगभग जो उसी प्रकार से आपको जानकारी based on होगी। reason. So that further develop. तो इसलिए जो भी हमारे जो अज्ञानता हैं, जो केवल और केवल अज्ञानता पर, जो भी हमारे जो विचार अज्ञानता पर पड़े हुए हैं, तो वो नष्ट हो सकते हैं। और जो सत्य बातें हैं तो उनको बढ़ाना चाहिए। अज्ञानता रूपी जो या क्लेश हैं, जो अविद्या, उनको हटाना चाहिए। तो जैसे जैसे अविद्या के ऊपर हम उसको नष्ट करते जाएंगे, जिससे जैसे अभ्यास करते जाएंगे, वैसे वैसे वो हटते चले जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी हमारे क्लेश हैं वो अविद्या की वजह से आते हैं। Then positive emotions such as compassion or wisdom, not based और on जहाँ तक जो सकारात्मक विचार हैं, जहाँ जो प्रज्ञा है, वो केवल आपको ऐसे ही हो वैसे नहीं होती, वो गहराई से आती है। वो तभी संभव होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके में चिंतन करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपके बारे में उसके विचार करें। तो ये मैं अपने अनुभव के द्वारा आपको ये बातें आपसे साथ शेयर कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो एक बौद्ध भिक्षु होने के नाते और ख़ास करके उस नालंदा परंपरा को मानने की वजह से, तो आप लोग शायद नागार्जुन का नाम जरूर सुना होगा। तो चाइनीज जो लुंगसू फुसा, जो कि बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। तो नागार्जुन को लुंगसू फुसा कहते हैं। तो हम सभी लोग उनकी परंपरा को मानते हैं। उन्होंने मूल माध्यमिक कारिका की रचना की है। Very helpful, very helpful. All destructive emotion, you see, based on ignorance. The ignorance. और जितने भी हमारे जो नकारात्मक विचार हैं, वो हमारे अविद्या पर आधारित हैं। और अविद्या को नष्ट करने के लिए जो हमारी प्रज्ञा है उसका उपयोग करने की जरूरत है, और जो वास्तविकता उसको समझने की जरूरत होती है। तो जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा लाभदायक रहेगा। India. Yes. Very good. Next. तो जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो मूल रूप से इंडियन हैं, भारतीय हैं। Yes. तो अभी एक प्रश्न जो है वियतनाम के स्टूडेंट का है। तो वो स्टूडेंट Good morning, His Holiness. My name is Rose from Vietnam. I'm 21 years old and I am an interior design student. My question is, how can someone who is still studying तो वो be practicing प्रश्न Dharma पूछ at रही the हैं same time? कि जो अभी पढ़ाई कर रहा है, जो कोई छात्र है, तो उस छात्र होते हुए भी अब वो धर्म का अभ्यास कैसे कर सकता है? तो उसको धर्म का अभ्यास करने का अवसर नहीं है। I start my practice age
7-8 years old, और I already मैंने started आप practice. परम पावन जी उत्तर दे रहे हैं कि मैंने जहाँ तक So meantime, जो I study. अभ्यास करने का जो प्रारंभ किया, So, मेरी वर्ष 7, जो मेरी 8 आय years, उस समय 7-8 वर्ष की since रही होगी, 7, तब से 8 मैं धर्म years का old, अभ्यास I कर रहा हूँ। तब से start अध्ययन शुरू study. किया, अभ्यास भी शुरू किया। Our Nalanda tradition study the root text, memorize. तो नालंदा परंपरा को जब हम अध्ययन करते हैं तो उस समय जो ग्रंथ होते हैं उनको याद किया जाता है, कंठस्थ किया जाता है। उसके बाद एक एक अक्षर को ठीक से पढ़ करके उसके अर्थ को समझ के उस पर एक प्रमाण के आधार पर उस पर हम डिबेट करते हैं, तर्क करते हैं। तो जब हम लोग तर्क करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, तब अभी हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जिसको हम जिसके साथ डिबेट कर रहे हैं तो वो कहीं गलत हो जाए, उसकी गलती को हम पॉइंट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो तभी तो डिबेट हो सकता है जब दूसरा पक्ष एक प्रकार से कमजोर पड़े। तो उस समय जब डिबेट आप करोगे तो उसके पूर्व में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता रहती है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि अध्ययन और अभ्यास दोनों साथ जा सकते हैं, दोनों साथ चलते हैं। तो मैं अभी 85 वर्ष का हो गया हूँ, अभी भी मैं अध्ययन करता हूँ, अभी भी अवसर मिलता है वैसे मैं अध्ययन करता हूँ। तो जैसे ही कुछ अवसर मिलते हैं तो जो अभी जो मैंने पूर्व में जिनको ग्रंथों को पढ़ लिया है उनका भी अध्ययन अभी भी करता हूँ, या कुछ नया जो दिखता है उसका भी अध्ययन करता हूँ। तो जहाँ तक प्रज्ञा की बातें करें तो वो एक तो स्तर तीन प्रकार से होता है। जो प्रज्ञा 3 प्रकार से, जो सो के श्रुतिमयी प्रज्ञा, दूसरा एक प्रकार से चिंतन करना। पहले आप सुनो, लोगों के द्वारा सुनो, ग्रंथ किताबों से आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, तो ये केवल और केवल आपको सूचनाएं की प्राप्ति होने के समान होते हैं। फिर उसके बाद उसको आप बार बार चिंतन करो, तो चिंतनमय प्रज्ञा, तो आपको एक दूसरे स्तर का ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये भी आपका दृढ़ एक प्रकार से मजबूत होता है, पहले से ज़्यादा ये कहीं मजबूत होता है। तो पहले व्यक्ति आपसे कुछ कहता है, फिर आप उसके बारे में चिंतन करते हो, तो आपको दूसरे की बातें थोड़े जो कि एक प्रकार से डाउट लगेगा। फिर जैसे जैसे और आप अध्ययन करते जाओगे, तब जाकर के आपका एक अपना ज्ञान हो जाता है, अर्थात भावनामय प्रज्ञा हो जाते हैं। तब आप कह सकते हो कि मैंने इसको अच्छी तरह से परीक्षण किया है, इसको अच्छी तरह से चिंतन किया है, अच्छी तरह से उस पर हमने जाना है। तो इस प्रकार का ज्ञान जो हो, एक प्रकार का ज्ञान आपके अनुभव के आधार पर खरी कसौटी पर उतरा हुआ ज्ञान कहलाता है। तब जाकर के आपको अनुभव की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से श्रुतिमय, चिंतनमय और भावनामय प्रज्ञा तीनों के हमको साथ साथ चलना चाहिए। और पिछले 50 वर्षों से अधिक से समय से मैं इस पर चिंतन करते आ रहा हूँ, मैं इसके बारे में विचार कर रहा हूँ और परहित किस प्रकार से हो सके। और इससे निश्चित रूप से हमारे मन में परिवर्तन आया है। और जैसे ही अवसर मिला वैसे ही मैंने अध्ययन भी किया। तो एक बार जब मैं जापान में गया, तो एक बुद्ध विहार में हमारी एक सभा हुई। तो उस समय उस सभा में मैंने कहा कि ये जो आपका जो बुद्ध विहार है, इसमें डिस्कशन होना चाहिए, धर्म के संवाद होने चाहिए, और ये केवल मंदिर केवल और केवल ध्यान साधना के लिए रहे, ऐसा नहीं है। वो भी हो, इसके साथ साथ अध्ययन जरूर हो, शास्त्रार्थ होना चाहिए, एक दूसरे के साथ संवाद करने चाहिए।
तो मैं एक व्यक्तिगत कन्वर्सेशन बातचीत यहाँ मैं आपके साथ साथ कहना चाह रहा हूँ। तो जापान के मेरे बहुत सारे भिक्षु लोग, विद्वान लोग मेरे मित्र हैं। तो एक बार वहाँ के एक बौद्ध भिक्षु जो कि मठाधीश थे और काफ़ी विद्वान भी थे, तो उनके साथ साथ जब हमारी चर्चा हो रही थी तो उन्होंने तो वो कहते हैं कि जापान जो जापानीज लोग हैं वो अक्सर जो प्रज्ञा पारमिता सूत्र है, हृदय सूत्र, उसका जाप करते हैं, पाठ करते हैं। और वो काफ़ी अच्छे मित्र थे और हर एक जापानीज उन्होंने वाकई सत्यता से कहा कि लोग मंत्र का जाप करते हैं लेकिन बेचारे वो मंत्र का अर्थ नहीं जानते हैं, बिना अर्थ को जाने ही जाप करते हैं। तो ऐसा उन्होंने मुझसे कहा कि तो मैंने वाकई उनका एक प्रशंसा करता हूँ कि वाकई जो बात सत्य है तो उसको आपको कहना चाहिए, और केवल और आप मंत्र जाप इत्यादि करते रहें तो उससे आप लाभ नहीं होगा। तो आप उसके साथ अध्ययन करें, चिंतन करें, तभी आपके लिए ये धर्म है वो लाभदायक होगा। केवल श्रद्धा अनुयायी बनते रहें तो उससे आपको ज़्यादा लाभ नहीं होगा। तो मैं जो है अभी भी इतना उम्र का होने के बाद भी अध्ययन कर रहा हूँ। तो आप लोग युवा हैं, आप लोगों को और अध्ययन करना चाहिए। तो अभी अंतिम में 3 प्रश्न बनते हैं। तो मलेशिया यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर साहब का प्रश्न है। नमस्ते, Your Holiness, I have to inform you that I teach a course on human dignity and human freedom. I use your book, your autobiography, Freedom in Exile, as a reading for my students. तो आपकी जो पुस्तक है, आपकी जो जीवनी, तो मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाया, उनको भी बताता हूँ। ये काफ़ी लाभदायक है। तो मलेशिया में इस्लाम और बुद्धिज़्म ये 2 प्रमुख बौद्ध धर्म हैं, 2 दर्शन हैं, वो 2 धर्म हैं। तो जो कि मुस्लिम और बुद्धिस्ट जो है और साउथ ईस्ट एशिया में इनको किस प्रकार से समझा जाए, इनका प्रश्न यही है कि मलेशिया में और ख़ास करके जो दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उसमें मुस्लिम और बौद्ध धर्म है। तो इन दोनों धर्मों के बीच सामंजस्य कैसे बन सके, एक दूसरे को किस प्रकार से समझ सकें, ये आपका प्रश्न है। The majority of the Ladakhi people, Buddhist. At the same time, और लद्दाख का मैं उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि ज़्यादातर तो वहाँ पर बुद्धिस्ट लोग हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, उसके साथ साथ मुस्लिम लोग भी वहाँ पर रहते हैं। तो यही मैं उनसे यही कहता हूँ कि जो भारतीय जो मुस्लिम हैं तो उन लोगों को भी कोशिश करना चाहिए कि जो बौद्ध हैं और मुस्लिम हैं उनके बीच में एक अच्छे संवाद करें, एक दूसरे के साथ अच्छे बातचीत करें। I think international level religious conference from time to time I think should take place. तो मैं ऐसा मानता हूँ कि भारत में भी समय समय पर जो धार्मिक सद्भाव के ऊपर विभिन्न धर्मों के साथ साथ चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार हो जाए उतना ही काफ़ी है, तो बार बार इस प्रकार से संवाद होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि अगर क्वेश्चन हो कि कोई करता है कि नहीं, ईश्वर है कि नहीं, तो ये बातें तो हमारे ज्ञान से परे हैं। और भगवान या ईश्वर के जो चित्त है, उनका जो मन है, उसको पढ़ पाना तो मुश्किल है। लेकिन केवल हम जो अपने खुद मनुष्य हैं तो अपने मन के बारे में तो जानते ही हैं, इनके बारे में कह सकते हैं, तो ईश्वर या भगवान के बारे में तो ज़्यादा नहीं कहा जा सकता है।
तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत में संवाद हों, सभाएं हों, तो ये निश्चित रूप से लाभदायक होंगे और प्रासंगिक भी होंगे। Thank you, Your Holiness. The next question will be from Mr. Kishore Babuvani from Singapore. तो आपका अगला क्वेश्चन किशोर वानी से है, डॉक्टर किशोर जो सिंगापुर से। Sound. In the beginning, Your Holiness, you spoke of technology and compassion. तो परम पावन जी, आपने शुरुआत में कि टेक्नोलॉजी और इनके बारे में आपने बातचीत की है। तो आजकल टेक्नोलॉजी भी है, व्यवस्था भी है, We also have compassion. Yet, तो हालांकि इनकी वजह से भी विश्व के एक गरीबी बढ़ रही है। why are we तो हम लोग failing करुणामय भी हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्यों इस प्रकार के जो चीज़ें हैं, इन समस्याएं हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उनमें हम फेल हो रहे हैं, ऐसा क्यों? There's poor people on this planet, rich and poor, huge gap. तो इस प्लानेट में देखें, इस पृथ्वी पर देखें, अमीर और गरीब में बहुत बड़ा अंतर है। तो ये भी एक रिसोर्सों के आधार पर एक प्रकार से समस्या है। आप देखें कि अफ्रीका और अन्य राष्ट्र जहाँ पर बहुत सारे लोग गरीब हैं और कुछ अन्य देश हैं जो कि आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध हैं, काफ़ी अच्छे हैं। तो भारत में भी आप उदाहरण के रूप में देखें कि बहुत सारे अरबपति हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे गरीब लोग भी हैं। तो ये तभी संभव होगा जब इस प्रकार की सोच नहीं आएगी कि हम सभी मनुष्य एक समान हैं, और जो अमीर लोग हैं उन लोगों की यही जिम्मेदारी बनती है कि जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करें। और जो गरीब तबके के लोग हैं तो उनको भी कुछ सुविधाएं दी जाएं जिससे कि वो सक्षम हो सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। तो ये अमीर लोगों का एक उत्तरदायित्व बन जाता है। और ये अमीरी और गरीबी का जो अंतर है वो विश्व में एक बड़ी समस्या है, वैश्विक समस्या भी है। So now, for example, this very moment in America, this is problem. जैसे उदाहरण के रूप में देखें कि अन्य देशों में, अमेरिका का उदाहरण देख लीजिए कि वहाँ पर आज के समय कितनी बड़ी समस्याएं हैं। और जो अफ्रीकन लोग जो अमेरिका में आए, एक प्रकार से बहुत सारे जो दासता के जो कि गुलामी के जीवन भी जिए। तो जहाँ ये तो एक आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी गरीब लोग हैं उनको हमेशा हीन भावना से देखा जाता है। तो ये भी एक गलत बात है। तो इस प्रकार के जो अमीरी गरीबी का जो अंतर है उसको, उस गैप को, उस अंतर को कैसे भरा जाना चाहिए, तो वो तभी संभव होगा जब समाजवादी विचार हो। और जो पूंजीवादी लोग हैं तो पूंजीवादी लोग इसके बारे में ज़्यादा विचार नहीं करते हैं, वो केवल अपने लाभ के बारे में ज़्यादातर सोचते हैं। तो चाइना का भी उदाहरण देख लें, वो अपने आप को समाजवाद देश कहते हैं, लेकिन फिर भी जो अमीरी और गरीबी का जो अंतर है वो बहुत बड़ा अंतर है। तो इसलिए एक दूसरे को समझना, एक दूसरे का जो मदद करना वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस अमीरी और गरीबी को गैप को कम करने के लिए भी हमें धार्मिक के दृष्टिकोण से भी सोचना चाहिए। तो अब अंतिम क्वेश्चन होगा, प्रश्न होगा। तो ये मलेशिया के एक छात्रा के द्वारा पूछा रहा है। माफ़ करना, स्टूडेंट नहीं है, तो ये कि मेंटल हेल्थ में काम करती हैं, कामकाजी महिला हैं। तो
ये प्रश्न पूछ रही हैं कि विश्व में अच्छा। खुशहाली लाने में युवा कैसे अपनी भूमिका को निभा सकते हैं। 가. I already mentioned the education, existing education. हालांकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है और खास करके जो वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली में इस चीज़ की कमी है और इसमें कमी जो है जो हमारे आंतरिक मूल्य हैं उसकी कमी है और इसमें किस प्रकार से इन चीज़ों को डाला जाए, किस प्रकार से आ सकें। The student always think about material thing. तो जैसे ही हम स्कूल में बच्चों को जब इसको पढ़ने के लिए डालते हैं तो उसमें उनको मॉडर्न शिक्षा में जब पढ़ाई जब कराते हैं तो ज़्यादातर भौतिक विकास के बारे में किस प्रकार से अब भौतिक चीज़ों को पा सकें, धन इत्यादि को पा सकें, उसका अध्ययन किया जाता है, कराया जाता है। तो इसके विपरीत जब तक हमारे आंतरिक मूल्यों का अध्ययन न हो तब तक खुशहाल होना संभव नहीं होगा। और वैज्ञानिक लोग मानते हैं कि जो आंतरिक मूल्य है इनका भी अध्ययन कराया जाना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले भविष्य में कि शिक्षा के क्षेत्र में जो आंतरिक मूल्य हैं उसमें लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे और ज़्यादा उसके प्रति एक प्रकार रुचि दिखाएंगे कि किस प्रकार से हम अपने भावनाओं को टैकल कर सकें, किस इनका रख रखाव कर सकें। निश्चित रूप से ये डेवलप होगा, विकसित होगा। तो परम पावन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे आयोजक की तरफ से कि मुझे उम्मीद है कि आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो भविष्य में भी फिर से कोशिश करेंगे कि आपका अवसर मिले। Yes. Okay. Actually, as a Buddhist practitioner, I dedicated my body, speech, तो एक बौद्ध भिक्षु होने के नाते, साधक होने के नाते मैंने अपना मन, शरीर और काय तीनों को जीवों के हित के लिए समर्पित किया हुआ है। और आज जो आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से मुझे मेरे लिए एक आसान है कि यहाँ बैठ कर के आप लोगों के साथ में बातचीत कर सकता हूँ। मैं हमेशा तैयार हूँ कि तो जो भी मेरे अनुभव हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Karsa. तो अलग अलग जो श्रोतागण हैं वो परम पावन जी का धन्यवाद उनसे नमस्कार कर रहे हैं। See you again. Okay. See you again. Thank you. Bye bye.